Today in this video, we'll be starting off with another unit of our NCC, which is Unit 13, Social Awareness. So I would say that this is one of the easiest unit which is given in our book. So it will be completed very shortly and easily in this video. So let's get into it. Starting off with social service. So we all know that we human beings are social animals. ठीक है, सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं इन वन वे और अनदर. ठीक है, सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी विच इज गिवन है. दिस कुड बी इंपॉर्टेंट. सो सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन वन वे और अनदर, बट दे आर डिपेंडेंट. Okay, there are many problems, big or small, in a society which needs to be taken care by its member for coexistence and growth of the society. The selfless service to the society is known as social service. NCC cadets have a great role to play in it. Okay, now we must know that there are several opportunities and as well as several problems which are existing in our society. So कैसे हम उन opportunities को एक तरीके से हम utilize कर सकते हैं और कैसे उन problems को हम solve कर सकते हैं, that solely depends on the members which are residing in that society. ठीक है, जब भी हम अपने सोसाइटी को एक सेल्फलेस सर्विस देते हैं, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, वी आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू देम, दैट इज नोन एज सोशल सर्विस. दैट इज सर्विस टू द सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग in return. And in social service, NCC cadets have a great role to play in it. Do you know why? Because we have seen that there are multiple social services which are undertaken by NCC cadets regularly. Okay, there are many social service activities which are taken care. For example, Swachh Bharat Abhiyan, the celebration of Millets Year, and we also have plantation drives. So these are some of the social services which are undertaken by NCC cadets. So that's why we need to understand the concept of social service and social awareness. ठीक है, because we all have to give our input in it. Now, what are the aims and objective of social service? We have to teach the cadets the dignity of labor. Okay, to create awareness about the creative work, we have to set an example for selfless service. We have to inculcate in team spirit, and we have to lead an organized work with the utilize जितना भी हमारे पास अनयूज टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी हैं, उनको हम कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि वो हमारी सोसाइटी के लिए काम आए. सो दीज आर सम ऑफ द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल सर्विस इन एनसीसी. Now, weaker sections, as we all know, weaker sections are those economical degraded groups, ठीक है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या फिर इक्वलेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी हमें मिलती हैं. एंड सब डिसइनहेरिटेड ग्रुप्स हैं जैसे कि स्लम ड्वेलर्स हैं, अर्बन ऑर्गेनाइज लेबरर्स हैं, बाउंडेड लेबर्स हैं, स्कैवेंजर्स. ठीक है, नाउ दीज पीपल डज नॉट हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज विच वी यूजुअली हैव. सो दैट इज़ वाई दे आर रेफर टू एज वीकर sections, and we have to uplift these weaker sections if we want to develop our society. Okay, so the main aim, ठीक है, जो हमारा होगा सोशल सर्विस का, इज टू फोकस ऑन द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, now the basic problems, social problems in our country are social inequality, lack of housing, illiteracy, inequality, communalism, caste system, diseases, and overpopulation. So these are some of the social problems which are there in our Indian society. Now, what are the various types of social services which can be undertaken by the cadets of NCC? It can be an education program, employment program, family welfare, provision for the water and cooking fuel, old age support system, social assistance, social security which is given to the older sections, and then we have housing and rehabilitation and recreation social facilities. Okay, now some major social activities which we undertake are blood donation drives, which are usually conducted regularly in our units, adult literacy, anti dowry drive, leprosy drive, anti drug drive, tree plantation which I already told you, eye donation, environmental programs, Cheshire Home, work in Cheshire Home, and help in the natural calamities such as flood, earthquake, etc. Okay, and moving on to the next topic, which is family planning. So family planning is defined as a voluntary responsible decision made by individual and couples as to the desired family size and timing of birth. Now, why do we need family planning?
because it is generally said that India is a very large populated country, and I think we have the highest population in the whole world. And but that is why the density of the land which is available to us is very low as compared to the population which we have in our country. सो अकोमोडेट करना चीज़ों को उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। हमारे पास लैंड रिसोर्स कम है और ह्यूमन रिसोर्स बढ़ता जा रहा है, तो हम ह्यूमन रिसोर्स को कैसे अकोमोडेट करेंगे, बिकॉज लैंड रिसोर्स इज लिमिटेड, वी कैन नॉट इंक्रीज आर लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो उसी वे में हमें अपना ह्यूमन रिसोर्स भी प्लान करके चलना चाहिए। सो जब भी कोई इंडिविजुअल और अ कपल दे टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर फैमिली साइज एंड द टाइमिंग ऑफ बर्थ फॉर देयर ऑफस्प्रिंग्स, सो उसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है। नाउ सम ऑफ द मेथड्स जिनके थ्रू वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आर वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉन्डम्स एंड डायफ्राग्राम्स एंड ओरल पिल्स, ठीक है। I think this is something which we all know. Then we have HIV and AIDS. HIV, which stands for Human Immunodeficiency Virus, is a virus that gradually destroys the body's immune system. Okay, HIV एक ऐसा वायरस है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करता है, और anyone who has HIV infection will develop AIDS over a period of time. Now, what is AIDS? AIDS refers to the acquired immunodeficiency syndrome, जो कि एक कंडीशन है जिसमें बहुत सारी डिजीजेस हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं ड्यू टू, क्योंकि हमारे बॉडी का जो एक डिफेंस सिस्टम होता है दैट जस्ट वीकेंस ड्यू टू HIV वायरस, सो उसकी वजह से हमें एड्स होता है। देन एड्स एक एक्वायर्ड कंडीशन है जिसमें लोगों के कुछ सिम्टम्स होते हैं, सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, बट उनकी जो बॉडी की फाइटिंग कैपेसिटी है दैट डिमिनिशेस ओवर टाइम, ठीक है। नाउ HIV एड्स इन्फेक्शन, HIV जो है हर एक बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है जो भी हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है। सो इन पर्सन हु इज इन्फेक्टेड बाय HIV और एड्स, उसके हर एक बॉडी फ्लूइड्स में HIV प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन ब्लड्स एंड वेजाइनल फ्लूइड्स, ठीक है। सो हाउ इट कैन गेट ट्रांसमिटेड, इफ समवन हैज़ अ सेक्शुअल ट्रांसमिशन, then HIV and AIDS can get transmitted by blood transfusion, by sharing the needles and syringes, and if a mother has HIV and AIDS, then it can get transmitted to their child also. So these are some of the some of the possible causes or reasons जिसकी वजह से HIV और AIDS जो है वो transmit होता है, ठीक है। Now how can we prevent this disease? We can be in a mutually faithful sexual relationship with our partner, and then we have correct and consistent use of condoms and checking all the blood and blood products for HIV infection. We should not share the syringe and needle, and we have to prevent the mother to child transmission of HIV infection. Okay, this is something very typical medical condition. So how can we prevent a mother to child transmission? That is taken care by the medical sciences. We doesn't have to focus on that. We can just follow some usual steps which we take on our side. Okay, now what is the role of NCC cadets regarding HIV? Okay, NCC cadets can educate general public by spreading the information, because we all know people are not aware of these types of diseases, and especially the slum areas where people are usually not aware about the diseases and how they got transmitted, ठीक है। सो वो कैसे बता सकते हैं इंफॉर्मेशन दैट HIV कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय द फॉलोइंग मोड्स। अब वी हैव टू स्प्रेड information that if we are shaking hands, if we are sharing clothes, if we are sharing food, utensils or toilets, or in sex bites, if we are hugging or kissing someone who has HIV or AIDS, it cannot get transmitted, ठीक है। So then we have next topic which we have is of cancer, its causes and preventive measures. Okay, so there are billions of cells in the human body. Normally they grow in a well regulated pattern. We all have studied the developing of cells in human body, I think from in the science from our 5th or 6th standard. But when cancer sets in, a group of cells suddenly starts multiplying and forms a tumor or lump, ठीक है। बट लेकिन अगर किसी को कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं वो एक बहुत ही रैपिड स्पीड पर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करती हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर और लंप का इशू आता है, ठीक है। और वो इतनी जल्दी मैग्निफिसेंट हो जाता है कि वहाँ पे ब्लड वेसल्स का ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, लिम्फेटिक चैनल्स आपके जो होते हैं वो क्लियर नहीं हो पाते, ठीक है। यानी कि लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू भी आपका फ्लूइड्स जो है बॉडी फ्लूइड्स वो मूव नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो डैमेज होता है दैट इज़ वेरी लार्ज इन कैंसर. So various types of cancer which are given here are blood cancer, oral cancer,
larynx cancer, which is in the throat. Then we have lung cancer, cervical cancer, breast cancer, prostate cancer, colon, skin and liver. सो दीज आर द टाइप ऑफ कैंसर्स जहाँ पर जो आपका ट्यूमर फॉर्मेशन है वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स में होता है, ठीक है, उसी के बेसिस पे आपके टाइप्स ऑफ कैंसर यहाँ पर दिए हुए हैं. नाउ व्हाट कैन बी द कॉजेज? इफ़ वी आर प्रोलॉन्ग च्यूइंग ऑफ टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से कैंसर हो सकता है. फॉर हैवी स्मोकिंग, excessive drinking, it can be caused due to air and water pollution, poor oral hygiene and deficiency in diet. If the body is not getting proper nutrients, then the possibility of developing certain diseases and cancers is usually high. Okay, there are high chances for that. Then what are the signs of cancer? If you are having a lump in our body, ठीक है, it is a sign of cancer, because at that particular area if the cells are multiplying at a very fast or rapid speed, it can be a sign of cancer. A change in mole, weight loss, persistent indigestion, loss of appetite. So these are some of the symptoms of cancer patients. So you can just give them a read. अर्ली साइंस एंड वार्निंग साइंस ऑफ लंग कैंसर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स, उनके क्या क्या साइंस हैं जिनकी वजह से हम उन्हें समझ सकते हैं, वो यहाँ पे दिए गए हैं. नॉट दैट मच ऑफ इम्पॉर्टेंट, जस्ट गिव देम अ रीड. देन वी हैव प्रिवेंटिव मेजर्स. हम स्मोकिंग वाइन्स को अवॉइड करके, टबैको गुटखा को अवॉइड करके, अपना गुड ओरल हाइजीन को मेंटेन करके अपने कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो सम ऑफ द मेजर्स विच वी टेक इन आवर एवरीडे लाइफ, ताकि हमें डिजीजेस से एंड स्पेशली कैंसर के जो इन्फेक्शन होते हैं इनसे हम बच पाएं. सो दीज आर सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स विच आर गिवन है. ठीक है, वी शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप्स, वी शुड अवॉइड ओबेसिटी, स्मोकिंग एंड सॉल्टेड फूड्स. Now, what is the contribution of youth towards social welfare? Okay, we can develop leadership in our youth, we can develop community service, we can work on national and cultural integration so that everyone should feel that they are pearls of same thread. And then we can work for improving and protecting our environment, for promoting the healthcare and family welfare. So these are some of the programs and contributions which we can do towards the youth of our society. Now, what are NGOs? एनजीओ एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप या एसोसिएशन होता है. ठीक है, इसका कोई एम नहीं होता है दैट इट हैज़ टू मेक सर्टन प्रॉफिट्स. ठीक है, ये मेंबर्स के द्वारा बनाया जाता है और इनका मेन एम होता है टू प्रोवाइड सोशल सर्विस टू द सोसाइटी. मेजरली दे आर फॉर्म फॉर चैरिटी पर्पजेज. ठीक है, एंड इफ यू आर टॉकिंग इन टू लीगल आस्पेक्ट, देन मोस्ट ऑफ द एनजीओज एंड चैरिटी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सो नॉट गोइंग इन टू दैट कॉर्पोरेट लॉ टाइप ऑफ थिंग. सो जो एनजीओज होते हैं हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका सोल एम ये होता है दैट दे हैव टू डू समथिंग फॉर सोसाइटी, दे हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग फॉर सोसाइटी इन विच दे आर ऑपरेटिंग. सो एनजीओज भी हमारे बहुत तरह के होते हैं. सबसे पहला आता है हमारा INGO, विच इज़ इंटरनेशनल NGO, दैट इज इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. Then we have business oriented international non-governmental organization. Now what happens in business oriented international NGOs is that we all know that some of the corporate entities जिनका टर्नओवर, नेटवर्थ या फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है जब वो एक सर्टन लिमिट को एक्सटेंड करता है, उन्हें CSR एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, सो वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो अमाउंट होता है वो कैसे डाइवर्स्ट करते हैं अपनी सोसाइटी में और इन्वेस्ट करते हैं अपनी सोसाइटी में, वो जो टास्क होता है कंपनी का एक बहुत बड़ा टास्क होता है. सो समटाइम्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रेगुलर ऑपरेशन, कंपनी का ध्यान CSR एक्टिविटीज़ पे ना जाकर वो क्या करते हैं कि अपनी CSR एक्टिविटीज़ को एक तरीके से अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए वो CSR का पूरी जिम्मेदारी एक NGO को दे देते हैं. एंड दोज NGOs आर नोन एज बिजनेस ओरिएंटेड इंटरनेशनल NGOs. ठीक है, जिनका मेन फोकस ये होता है कि वो बिजनेस एंटिटीज़ का CSR एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे. That as business oriented international NGO. Then we have religious international NGO. So as the name is suggesting, these are more focused on particular religions which they follow. Then we have environment NGOs which are there for the protection of the environment. Okay. Now what are the activities of NGOs? NGOs can take child care, polio eradication drive, tree plantation, blood donation, school facilities, cottage industry, some regular examples. Okay, not that much of important, just give them a read. Then we have drug trafficking. Okay, we know that in our society drug menace is one of the most serious problems,
and when people consume drugs, that is it is one of the highest problems in our majorly west states. For example, Punjab, it is said that Punjab is the most affected state due to drug trafficking. ठीक है. Now what are the types of drugs? This is important and we need to learn this also. So हमारे तीन मेन टाइप के ड्रग्स होते हैं. ठीक है. ड्रग्स जो होते हैं हमारे मोस्टली हमारे सीएनएस को अफेक्ट करते हैं, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका ब्रेक नहीं करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. तो जब वो ठीक से आपका वर्क नहीं करेगा, सो आपका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है ऑन योर फीलिंग्स एंड योर वे ऑफ थिंकिंग एंड आपका जो वे होता है क्रिएटिव इमेजिनेशन का एंड अदर थिंग, वो ठीक से काम नहीं करता है इफ अ पर्सन इज इन्वॉल्व इन कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स. तो तीन तरह के हमारे ड्रग्स होते हैं. फर्स्ट इज डिप्रेसेंट्स. सो दीज आर ड्रग्स दैट स्लो डाउन द फंक्शन ऑफ सीएनएस. इसमें आते हैं हमारे अल्कोहल्स, कैनाबिस एंड बार्बिट्रेट्स एंड जीएचपी. ठीक है. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन हैड बट डू नॉट लर्न द एग्जाम्पल्स, वी जस्ट नीड टू लर्न द टाइप्स ऑफ ड्रग्स. तो सबसे पहले आता है हमारे डिप्रेसेंट्स, जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, विच मेनली कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. देन वी हैव स्टिमुलेंट्स. Now these drugs act on the central nervous system to speed up the message to and fro from the brain. So stimulants भी से आपने देखा होगा कभी stimulants, it is said कि जो हमारा कॉफ़ी होता है, ठीक है, कॉफ़ी में भी हमारे stimulants present होते हैं. सी कैफाइन एंड निकोटाइन. ठीक है. सो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं कि जो स्पीड होती है मैसेज ट्रांसमिशन की हमारे ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम की, उस स्पीड को वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है. सो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको इसमें हार्ट अटैक आ सकता है. आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही अनयूजुअल तरह से राइज या फॉल कर सकता है. सो दीज आर स्टिमुलेंट्स जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्पीड अप करते हैं. Then we have hallucinogens. These drugs affect perception. People who take them may perceive imaginary things. ठीक है. You should know that drugs, people who consume drugs sometimes they experience hallucination. यानी कि उन्हें जो चीज़ें exist नहीं करती वो चीज़ें भी उन्हें दिखने लग जाती हैं. So that is solely based on their imagination. फॉर एग्जाम्पल धतूरा एंड केटामाइन. ठीक है. तो तीन तरह के हमारे ड्रग्स होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा डिप्रेसेंट्स. ठीक है. जो कि क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं. स्टिमुलेंट्स एज अ नेम इज सजेस्टिंग, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पीड होती है इसको स्टिमुलेट करते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं. हेलोजेंस जो होते हैं दैट यूजुअली क्रिएट्स हेल्यूसिनेशन, जिसकी वजह से लोग इमेजिनरी थिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है वो भी उन्हें एग्जिस्ट करना दिखाई देने लग जाती है. ठीक है. नाउ देयर आर सम ऑफ द लीगल ड्रग्स एंड देन वी हैव सम इलीगल ड्रग्स. लीगल ड्रग्स हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो कि वो ड्रग्स होते हैं जो कि अलाउड होते हैं बाय लॉ एंड गवर्नमेंट, जिन्हें लोग कंज्यूम कर सकते हैं बट ऑन द डिस्क्रिशनरी एडवाइस ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्टर. तो वो हमारे लीगल ड्रग्स होते हैं. इलीगल ड्रग्स हमारे वो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, विच आर टोटली प्रोहिबिटेड बाय द गवर्नमेंट और लॉ, जिनका कंजम्पशन ही बिल्कुल टोटली प्रोहिबिटेड है एंड स्टिल इफ पीपल आर डीलिंग इन देम देन दे आर डीलिंग इन इलीगल ड्रग्स. ठीक है, विच आर नॉट सैंक्शनड बाय लॉ ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. Then next up we have rural development programs. So as we all know that India is an agriculture oriented country. We have a large population which is involved in agriculture sector. Now over the period of time the share of workforce in agriculture sector is decreasing, but still we have a large number of population which is involved in agriculture sector. And usually the people who are involved in agriculture sector resides in the rural sides of our country. They reside in the rural regions. So रूरल डेवलपमेंट जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमी का एक बहुत ही मेजर शेयर डेवलप होगा. क्यों? क्योंकि रूरल रीजन में ही हमारा बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ एक तरीके से हम बोल सकते हैं पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड करता है. ठीक है. सो वाई रूरल डेवलपमेंट इज नेसेसरी? बिकॉज रूरल डेवलपमेंट जब होगा हमारा तो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स भी इम्प्रूव होंगे. रूरल डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिसका एम है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना उन लोगों का जो रूरल एरियाज में रिसाइड कर रहे हैं. So you should highlight this line. I have not highlighted it because I have also not read it and I am reading this for the first time in this video only. So rural development एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसका मेन एम ये होता है कि जो लोग रूरल एरियाज में रिसाइड कर रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हमें करना है. ठीक है. नाउ अब हम उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? रूरल डेवलपमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं?
It consists of health, education, employment facilities, road, banking facilities, water, electricity, rural tourism. ये सब चीज़ें हमारे रूरल डेवलपमेंट में कवर होती हैं. अगर हम इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, देन रूरल डेवलपमेंट कैन बी डन ऑन अ faster pace. Now, what is the need for rural development? So, it is said that 70% of the Indian population live in rural areas. So, this is not an amended book. So, the share has decreased, but still a large portion. I would say that more than 50% of our population resides in rural areas. So, इसकी वजह से rural development करना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम rural development करेंगे totally और naturally automatically जो है हमारा country का भी overall development जो है वो increase होगा. So, जब हम rural development हम करेंगे तो हमारी rural पॉपुलेशन एम्पावर होगी, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, अर्बन रूरल का जो डिवाइड है वो ब्रिज होगा, यानी कि कम होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इकोनॉमिक गैप जो है वो कम होगा हमारे नेशनल इनकम में, एंड मोर और लेस लोगों को जो माइग्रेशन है फ्रॉम रूरल टू अर्बन प्लेस वो कम हो जाएगा. अब होता क्या है कि दैट in urban areas we have limited number of resources, but people are migrating from rural to urban areas. अब यहाँ पे resources कम है, लोगों की job already occupied है. जब urban वाले लोग भी rural वाले लोग भी जब urban areas में आते हैं तो उन्हें job opportunities नहीं मिलती हैं, तो वो छोटे मोटे काम में involve हो जाते हैं. ठीक है, जब वो छोटे मोटे काम में involve होते हैं तो वो हमारे national income में इतना ज़्यादा contribute नहीं कर सकते. ठीक है, so that is why rural development is needed. Then some of the rural development programs which were initiated by our government, which these are given here, and this is important. ठीक है, some of the programs have been कुछ programs को अब ख़त्म कर दिया गया है, some are existing but we still have to read about them. The very first program which is given here is of Manrega. We have already studied in our class 10th. I think everybody has studied it in their Indian economic development. That is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. So इसमें 100 days का guaranteed employment मिलता था. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं तो 100 डेज का जो भी आपका वेज अमाउंट होता था वो लोगों को प्रोवाइड किया जाता था. 60-40 का वेज और मटेरियल रेशियो मेंटेन हुआ था, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर और मशीनरी अलाउड नहीं होते थे. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 100% वेज कॉस्ट और अनस्किल्ड मैनुअल लेबर का 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट अपने ऊपर बियर कर रही थी उस टाइम पे. सोशल ऑडिट होता था ग्राम सभा का एटलीस्ट इन एवरी 6 months, इट मीन्स ट्वाइस इन अ ईयर. ठीक है, 1/3 बेनिफिशरीज इस प्रोग्राम्स की शैल बी वुमेन. दिस वाज अ कंडीशन दैट 1/3 beneficiary should be women and 2/3 population belongs to the male population. So मनरेगा में मेन थिंग आपका यही था कि 100 डेज का assured employment, और अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते हैं तो 100 डेज का जो भी आपका वेज का अमाउंट होता था दैट शुड बी गिवन टू यू, जिसमें से टोटल जो हमारा वेज कॉस्ट होता था दैट वुड बी बियर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 1/3 आपका बेनिफिशियरी वुमेन होंगे. एंड सोशल ऑडिट इस वाले प्रोग्राम का होता था ट्वाइस इन अ ईयर, दैट इज इन एवरी 6 months. Then next up we have Deen Dayal Antyodaya Yojana, that is NRLM, that is National Rural Livelihood Mission, also known as NRLM, National Rural Livelihood Mission. ठीक है, जिसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है दीन दयाल अंत्योदय योजना में डे. ये जो स्कीम है दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. इसका एम ये है कि किस तरीके से हम एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव तरीके से रूरल पुअर के लिए प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं ताकि उनकी हाउस होल्ड इनकम बढ़े और उनका लाइवलीहुड के जो फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह हैं उनका एक्सेस भी उनकी तरफ बढ़े. अब इस ही प्रोग्राम के अंदर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है दैट इज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. अंडर दीन दयाल अंत्योदय योजना और अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप वाज एमर्ज्ड. ठीक है, इसका मेन एम ये था कि हम मोस्टली वुमेन्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कॉन्स्टिट्यूट करें और लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज की एक तरीके से एक्सेस हो. दैट वाज द मेन एम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. Now the target group is identified through the participatory identification of poor PPP method, PIP method, and it is delinked from BPL. The responsibility of identification of poor must be vetted by Gram Sabha and approved by the Gram Panchayat. ठीक है, NRLM रिवॉल्विंग फंड हमें प्रोवाइड करता था, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड्स प्रोवाइड करता था, फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द पुअर, पार्टनरशिप विद NGOs एंड लिंकेजेस विद पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. सो जो हमारा पहला प्रोग्राम हमने पढ़ा मनरेगा, इसमें तो था हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड. नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम विच वी स्टडीड है दैट इज ऑफ दीन दयाल अंत्योदय योजना. इसमें मेन एम था लोगों का फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में एजुकेट करना. ठीक है, इसमें लोगों को इनकरेज किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए, उन्हें एनकरेज किया गया अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सेविंग्स करने के लिए. सो दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस
particular program. The next up we have दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. अब इसमें क्या होता था कि इसमें रूरल पुअर फैमिलीज जो थी वो रूरल यूथ पे ज़्यादा फोकस करती थी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज टास्क विद द डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिंग डाइवर्सिटी ऑफ द इनकम ऑफ रूरल पुअर फैमिलीज, यानी कि जो रूरल एरिया में पुअर फैमिलीज हैं वो कैसे अपनी इनकम शेयर को बढ़ा सकती हैं और यूथ का जो करियर एस्पिरेशंस है उसको कैसे वो इंक्रीज कर सकती हैं. अब कैसे रूरल पूथ जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट सेक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, इसका मेन एम ये था कि लोगों को हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिसकी वजह से उनका इनकम शेयर जो है फैमिली में वो इंक्रीज हो. ठीक है. इसका मेन एम था रूरल यूथ पर फोकस करना. ठीक है. जिनकी एज है फ्रॉम 15 to 35 ईयर्स. कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स लिए गए थे इस प्रोग्राम के अंदर जो कि थे हिमायत. ये एक स्पेशल स्कीम थी यूथ के लिए, बोथ फॉर रूरल एंड अर्बन, जो कि जम्मू कश्मीर में हमारी इनिशिएट की गई थी. द नेक्स्ट इनिशिएटिव इसमें था रोशनी, जो कि एक स्पेशल इनिशिएटिव था अगेन फॉर द रूरल यूथ ओनली, पुअर फैमिलीज में. ठीक है. जिसमें लोगों को फैमिलीज इन 27 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 9 स्टेट्स. सो ये एक रूरल यूथ को रोशनी जो था दैट वाज अ एम कि किस तरीके से हम रूरल यूथ को उनके फ्यूचर के बारे में एजुकेट करें और उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बढ़ाएं ताकि उनका इनकम शेयर बढ़ सके फैमिली में. सो दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना और प्रोग्राम. द नेक्स्ट अप वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना. सो ग्रामीण, इसका आपको नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज़ एन आवास योजना. ठीक है. यानी कि लोगों को हम कैसे ड्वेलिंग यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कैसे हम हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं. दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम. ठीक है. ये एज अ वर्ड इज सजेस्टिंग ग्रामीण, यानी कि ये रूरल एरियाज में ही हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़. At least 1 crore पक्का और permanent houses were constructed for the rural poor in next 3 years. This was the aim of the government. ठीक है. और 3 years के अंदर जॉब क्रिएशन भी फिर रूरल एरियाज में बढ़ेगा इफ दिस प्रोग्राम हैज़ बीन सक्सेसफुल. ठीक है. अलाउंस दिया जाता था प्लेन एरियाज में फॉर अप टू 1,20,000 और हिली एरियाज में फॉर अप टू 1,30,000. ठीक है. जो यूनिट का साइज था जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था दैट वुड बी 20 स्क्वायर मीटर टू 25 स्क्वायर मीटर्स. और फंड जो थे वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर होने थे from the government department to the beneficiary accounts. ठीक है. So this was the main aim. So as the name is suggesting, the main aim was to provide the housing dwelling units or residential units to the rural poor. The next up we have National Social Assistance Program, NSAP. So as the name is suggesting, social assistance. Now what particular section of society needs social assistance? That is the aged society. ठीक है. जो कि हमारे senior citizens होते हैं. सो सीनियर सिटीजन्स को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च किया गया था जिसमें हमारी 5 स्कीमें आती थी. जो 5 स्कीमें थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, देन डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, फैमिली पेंशन स्कीम एंड अन्नपूर्णा. ठीक है. यानी कि ये जो पूरा प्रोग्राम था इस प्रोग्राम में 5 स्कीम्स को एक साथ मर्ज कर दिया गया था. एंड द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू प्रोवाइड पेंशन फैसिलिटीज, वॉज टू प्रोवाइड बेनिफिट्स स्कीम्स टू द फैमिली, जो कि उन लोगों को जो कि हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं. ठीक है. उनको सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इस वाले प्रोग्राम में हमारी स्कीम्स को इमर्ज कर दिया गया था, मर्ज कर दिया गया था. देन वी हैव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विच इज PMGSY. सो एज द नेम इज सजेस्टिंग, द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम वॉज टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ताकि लोगों को कनेक्टिविटी मिल सके रूरल एरियाज़ में और उनका ट्रांसपोर्टेशन भी इन्हांस हो. सो इसका मेन एम था ऑल वेदर रोड प्रोवाइड करना कनेक्टिविटी के लिए. जितने भी हमारे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं रूरल एरियाज़ में उनको कनेक्ट करना. ठीक है. ऑल वेदर कनेक्टिविटी. ठीक है. 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड थीम थी, 50% सेस था. ठीक है. देन टारगेट ईयर वाज 2019 जिसमें 100% हमें कनेक्टिविटी चाहिए थी. मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए गए इस योजना के अंदर और बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इन्हांस हुई अंडर दिस प्रोग्राम. Then last up we have National Rural Mission, that is NRUM. So NRUM is also called as Shyama Prasad Mukherjee
rural urban mission and armed at strengthening rural areas by provision of economic, social and physical infrastructure facilities. So इसका मेन एम ये था कि किस तरीके से हम रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में एक तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ में. सो मेन एम ये था कि किस तरीके से हम रूरल एरियाज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाएं, लोगों को एक तरीके से स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट करें. जो हमारे रूरल विलेजेस हैं उनको कैसे हम स्मार्ट विलेजेस में कन्वर्ट करें, दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस मिशन. तो इस मिशन के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गई थी, डिजिटल लिटरेसी ट्रेनिंग दी गई थी, मोबाइल हेल्थ यूनिट कंस्ट्रक्ट किए गए थे, सेंट्रक सर्विसेज, ई ग्राम कनेक्टिविटी, यानी कि किस तरीके से हम अपने अर्बन मिशन को, यानी कि रूरल जो हमारा एरिया है उसको हम कैसे अर्बन में कन्वर्ट करें बाय डिजिटलाइजेशन, बाय द हेल्प ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी एंड अदर सर्विसेज. ठीक है. सो इसका मेन एम ये था कि हम किस तरीके से लोगों को जो रूरल एरियाज में रिसाइड कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें. ठीक है. सो दैट वाज द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम. Okay, so I think yes, this is it for this part, and the rest of the chapter will be continued in the next part. So I hope you are able to understand which is being taught in this lecture. So thank you so much for watching this video and see you in next part.